Okay, welcome students back, right, for our lectures on first part, ultraviolet spectroscopy. So welcome to DIBNS Dehradun, affiliated to HNBGU Srinagar, Garhwal, Uttarakhand. I am Professor Varsha Parcha, Department of Chemistry and Pharmaceutical Chemistry. So students, we were discussing on that day application of Woodward-Fizzer rule in structural elucidation of organic compounds. We have done a little, so advancing forward. So just I'll skip up the slides what we have done, but just go through it, just and summarize whatever we are talking about. First was to familiarize the Woodward-Fizzer rules to calculate maximum wavelength of the organic compound. Those students जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था उस दिन, उन लेक्चर उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ अप पहले 10 मिनट्स का कर देती हूँ. Then we will go to our actual lecture, that is alpha beta unsaturated carbonyl compounds. ठीक है? So this was there again and again. मैं repeat कर रही हूँ इसको. Introduced in 1945 by Robert Brown Woodward, who gave certain rules for correlating maximum wavelengths with the molecular structure. And in 1955, Louis Frederick Pfizer modified this rule with more experimental data and modified rules known as Woodward-Fizzer rule. ठीक है? Already you know this. Advantages: you can find out, calculate position and maximum wavelength for a given structure by relating the position and degree of substitution of chromophore. So there some will be there. You will be coming. एक था हमारा conjugated diene, एक था simple diene. तो क्या difference होता है दोनों में? Already you know, but still to give you a just a glimpse. So a simple diene means a simple alkyl-diene. That means an olefin which are 2 in a number. So this is a simple diene. It may not be that you are having an alternate. It can be anywhere. It is not necessary. It has to be an alternate double bond and a single. So a simple molecule which contains 2 double bonds. उसको हम डाइन बोलते हैं, है ना? पहले भी उस दिन मैंने समझा दिया, जैसे कि ये है. ये भी ये डाइन नहीं हुआ, ये अब ट्राइन है, इसको छोड़. It is not there. I am talking about this double bond, single bond, फिर single bond, फिर double. So it's a simple diene. But what happens in this conjugated diene? You always will have a double bond which is in conjugation. Single bond, then double bond. So this is termed as conjugated diene. You will come across this term again and again. So there are few terminologies which we have to come across. ये already हम discuss कर चुके हैं, है ना? अब वुडवर्ड-फाइजर ने रूल दिया, उसने कहा कि कुछ वैल्यू होगी जो हमने फिक्स कर रखी है कि डाइन की कोई बेस वैल्यू है. ये सपोज एक सिंपल डाइन, इसके साथ कुछ भी चीज जुड़ी है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन इसके साथ अटैच नहीं है, एच नहीं है, मिथाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एक वैल्यू जो मिनिमम ये कंपाउंड शो करेगा उस वैल्यू को हम बोलते हैं. फिर मैंने बताया था ये डाइन अगर रिंग के अंदर है, ये तो ओपन चेन हो गया, सिंपल एसाइक्लिक. ये रिंग के अंदर नहीं है, अगर ये अंदर है तो हम इसको बोलते हैं होमोएनुलर डाइन. एक रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड्स, हम इसको बोलते हैं होमोएनुलर डाइन. और अगर यही डाइन ने इसको बोल दिया हेट्रोएनुलर डाइन, तो हमने इसकी नंबरिंग भी करी. से इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4. यहां पर क्या है? 1 2 3 4. यहां पर भी वही है 1 2 4. बट यहां का डिफरेंस इससे क्या है? ये ओपन चेन है, एसाइक्लिक है. ये क्या है? ये रिंग में है, लेकिन रिंग कैसा है? एक ही रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आ गया. और अगर ये रिंग 2 डबल बॉन्ड्स में चले जाए, 2 रिंग्स में चले जाए, सॉरी 2 डबल बॉन्ड नहीं, 2 एक्सटेंड हो जाए, हमने इसको हेटेरोएनुलर दिया. इसकी वैल्यू बेस वैल्यू, इसकी बेस वैल्यू और इसकी बेस वैल्यू डिफरेंट है. एक मिनिमम बेस वैल्यू कि ये कितना देना चाहिए. उसके अलावा एक चीज बताई थी, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन ए रिंग, उसको हम एंडोसाइक्लिक कहते हैं. और बॉन्ड ऐसा डबल बॉन्ड जिसका एटलीस्ट 1 कार्बन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द रिंग सिस्टम, उसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक. जैसे कि ये, इसमें अगर हम ये रिंग ए की बात करें और ये रिंग बी की बात करें, ठीक है, ये रिंग बी है. सपोज रिंग ए की बात करी
ये ए, ये बी है। तो इफ आई आस्क यू रिंग ए में कोई डबल बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक, हमें इसको भूल जाना है, बी छोड़ दो। हमने क्या देखना है, कोई ऐसा डबल बॉन्ड तो नहीं है जिसका एक पार्ट रिंग का सिस्टम हो अदर देन दैट, ये नहीं, ये तो एक ही रिंग की बात है। इसके अलावा इस ब्यूटेन कुछ है कि डबल बॉन्ड जो है वो पार्ट ऑफ द उसका मिनिमम एक पार्ट, नो, इट हैज ओनली वन साइक्लिक। लेकिन अगर मैं इस रिंग की बात करूं, रिंग बी की बात करूं, तो मैं क्या देख रही हूं, एक डबल बॉन्ड का मिनिमम एक पार्ट जो ब्यूटाडाइन डबल बॉन्ड था उसका एक पार्ट पार्ट ऑफ द रिंग सिस्टम है, तो इसको एक्सोसाइक्लिक कहते हैं। एंडोसाइक्लिक या एक्सोसाइक्लिक, अगर हमारा ब्यूटाडाइन है तो उसमें हमें इंक्रीमेंट डालनी है, वो रूल वुडवर्ड ने दे रखे हैं जो आगे मैं बताऊंगी। सो बेस वैल्यू एसाइक्लिक की, बेस वैल्यू होमोएनुलर की, बेस वैल्यू हेट्रोएनुलर की डिफरेंट है। बट आपके साथ ये देखना है, जब हमने ये ब्यूटाडाइन सिस्टम को स्टडी किया, कहीं ऐसा तो नहीं उसका डबल बॉन्ड जो है रिंग में कर रहा है तो हम उसको एंडोसाइक्लिक बोलेंगे, क्या ऐसा तो नहीं है डबल बॉन्ड दो रिंग्स में जा रहा है तो उसका वन ऑफ द डबल बॉन्ड जो है वो उसकी बॉन्डेड एटम की है, वो पार्ट ऑफ द रिंग सिस्टम तो नहीं है, तो उसके लिए हम ऐड करते हैं, उसमें इंक्रीमेंट्स देते हैं। फिर मैंने आपको कुछ रूल्स बताए, इसमें से वो एसाइक्लिक का नहीं लिखा था, एसाइक्लिक का है 217, 217। एक चेन एसाइक्लिक का बेस वैल्यू डाइन का है 217, होमोएनुलर का है 253, हेट्रोएनुलर का है 214। ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको एल्काइल सब्स्टिट्यूशन या रिंग रेजिड्यू, इसका क्या मीनिंग होता है कि इसके ऊपर, जैसे ये सिंपल ब्यूटाडाइन था, है, इसके ऊपर मैंने ये मिथाइल जोड़ दिया, तो क्या मिथाइल जोड़ने से कुछ फर्क पड़ा? जो पहले आप समझ चुके हो पैथोक्रैमिक शिफ्ट क्या होती है, जो अगर कोई रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है ऑक्सोक्रोन की तरह एक्ट कर रहा है तो टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ जाएगा, तो मिथाइल ग्रुप अगर मिनिमम एक होगा तो 5 का इंक्रीमेंट है। लेकिन अगर ये हेट्रोसाइक्लिक जो ये जो आपका सिस्टम था, ये अगर हमारा पार्ट ऑफ द रिंग सिस्टम डाइन है वो रिंग में हो, हम इस सब्स्टिट्यूशंस को, ये जो जुड़ी हैं, ये जो जुड़ी हैं, ये जो जुड़ी हैं, इनको हम बोलेंगे रिंग रेजिड्यू, है ना। तो अगर हमारे पास रिंग रेजिड्यू है या एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है, हर एक के लिए जो हमने वो देना है, इंक्रीमेंट देना है, दैट इज 5 नैनोमीटर। 4 होंगे तो 20 हो, 3 होंगे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, चाहे रिंग रेजिड्यू है चाहे एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है। फिर क्या था, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन। अगर ब्यूटाडाइन एक्सटेंड हो गया, हमें तो मिनिमम चाहिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, है ना। हमें चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मिनिमम हमारे पास ब्यूटाडाइन सिस्टम है, थॉरोली इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड। बट अब क्या हुआ, ये एक्सटेंड हो गया, लेकिन कैसे? कंजुगेशन, एक्सटेंशन हो गया डबल बॉन्ड का कंजुगेशन में। अब हमारे पास ब्यूटाडाइन सिस्टम, ये जो सब्स्टिट्यूशन है, नाउ दिस इज बाय कंजुगेटेड ईन, है ना, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड से एक्सटेंड हो गया, तो पर एक्सटेंशन पे 30 नैनोमीटर है। आप पहले से ही जानते हो, फैक्टर्स करे थे हमने, कंजुगेशन क्या करता है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ा देता है और लोएस्ट वेकेंट की कम कर देता है, तो एनर्जी जो डेल्टा ई है वो डिफरेंस कम हो जाता है, तो लोअर एनर्जी लेवल पे ही, लोअर एनर्जी सप्लाई करने पे ही एक्साइटेशन हो जाती है ना। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसके लिए हमें 30 का नैनोमीटर देना है, और एक्सोसाइक्लिक हो या एंडोसाइक्लिक हो इट इज 5 नैनोमीटर। उसके अलावा अगर हमारे साथ कुछ अटैचमेंट्स हो, मींस कोई कोई ग्रुप जुड़ा हो, जैसे कि OR तो 6 नैनोमीटर, क्लोरीन होगी तो 5 नैनोमीटर, ब्रोमीन होगी तो 5 नैनोमीटर। फिर हमने वी सॉल्व्ड दिस एग्जांपल, आप लोगों ने जो असाइनमेंट भी की थी मैंने वो चेक करी है, किसी किसी में मिस्टेक्स भी हैं, खैर मैंने मार्क्स नहीं है, मैंने देखा है, और दैट मिस्टेक्स जो है, अब हम जब अभी हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पढ़ने जाएंगे उसमें हम उसको कवर अप कर देंगे। मैं आई टेल, वो एक्सोसाइक्लिक एंडोसाइक्लिक में काफी स्टूडेंट्स ने थोड़ी सी मिस्टेक भी करी हुई है, तो उसलिए, और कहीं कहीं रिंग रेजिड्यू कैलकुलेट करने में भी किया हुआ है। सो एंड ओवरऑल जब हम क्लास करेंगे, जनरल डिस्कशन करेंगे, लेट मी फिनिश अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल आल्सो, फिर जब मैं जनरल डिस्कशन करूंगी से ऑन फ्राइडे
next Friday हम general whatever deficiencies we are coming across with the diene system, we will be coming across along with this your alpha beta unsaturated system, या जब हम aromatic system पढ़ेंगे, कोहान rule पढ़ेंगे, फिर उसको हम एक thorough उस दिन की क्लास वर्चुअल जो होगी that will be based on the regular discussion. ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व करके करी थी. ये हेटेरोएनुलर डाइइन सिस्टम है, तो बेसिक वैल्यू कितनी है 215. तो रिंग रेजिड्यूज कितने थे 1 2 एंड 3 है ना. तो ये 3 करने से क्या हो गया 3 इंटू 5 15 नैनोमीटर. अब इसमें हमने देखना है भाई हमारे पास ये है तो सही, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं इसके, तो आई स्टार्टेड विद दिस 1 2 3 4, तो इट इज हैविंग वन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है ना. तो इसकी इंक्रीमेंट 5 आई. सपोज आई हैव नॉट स्टार्टेड फ्रॉम नंबरिंग फ्रॉम दिस, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 1 2 3 4, तो देन आई आस्क whether it has one exocyclic or double bond. तो ऐसे देखेंगे तो हमारे पास नहीं है. रिंग ए के लिए तो बी नो एक्सोसाइक्लिक, बी के लिए एक है लेकिन ए के लिए तो नहीं है. एंडोसाइक्लिक भी हैं अगर हमने नंबरिंग यहां से. सो एक्सोसाइक्लिक एंड इंक्रीमेंट इज 5. तो सबको जब हम टोटल ऐड करते हैं इट बिकम्स 234 और ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड में नैनोमीटर्स का डिफरेंस आता है. ऐसे ही एग्जांपल मैंने दिया था एसाइक्लिक कंजुगेटेड डाइइन का बेस वैल्यू 217, ये एक अल्फा, ये एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, तो वी गॉट 220 है ना. उसके बाद हम आ गए थे, ये मैंने उस दिन भी करवा दिया था, हमने स्टार्ट कर दिया था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड. तो मैंने बताया था एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, रिंग में भी हो सकता, मेंबर में भी हो सकता है, 6 मेंबर भी हो सकता है. हर एक होम जो पेरेंट वैल्यू है डिफरेंट होगी. ठीक है. सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल्स का मीनिंग क्या था, अल्फा और बीटा पोजीशन में कार्बोनाइल के मुकाबले में, पहले मैं एग्जांपल यहां दिखा देती हूँ एक, फिर हम करते हैं. एक मिनट. ये जैसे अल्फा बीटा का मीनिंग क्या था, अल्फा और बीटा पोजीशन पे कार्बोनाइल के ये सीओ हैं, अल्फा और बीटा पोजीशन पे वी शुड हैव अ डबल बॉन्ड. इसके इधर क्या है, इट कैन बी मिथाइल, इट कैन बी एच, इट कैन बी ओ एच, इट कैन बी ओ आर, कुछ भी हो सकता है. मगर हमारी प्री कंडीशन क्या है, हमें कार्बोनाइल के और बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए. ये एक्सटेंड हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है. कंजुगेशन में होगा एक्सटेंशन तो हम इंक्रीमेंट्स ऐड करेंगे, बट बेसिक कंडीशन जैसे ब्यूटाडाइन में किया था, तो व्हाट वाज द बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन वाज दिस है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बेसिक कंडीशन थी. लेकिन हाँ बेसिक कंडीशन क्या है, कार्बोनाइल के अल्फा बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए. उस दिन मैंने थॉरोली आपको बता दिया, कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा. रिंग में कभी नहीं आएगा आपका एल्डिहाइड, ओपन चेन हो सकता है उसमें आ सकता है. रिंग में अगर होगा ये 6 मेंबर में भी हो सकता है और मेंबर में भी हो सकता है. फिर से मैं बताती हूँ आपको इंक्रीमेंट्स कैसे हैं. एक कीटोन की एसाइक्लिक होगी तो 250, 6 मेंबर होगी तभी भी 215, 5 मेंबर होगी तो 202. लेकिन अगर एल्डिहाइड होगा, इसको आप कटिंग कर दीजिएगा, अगर एल्डिहाइड होगा एसाइक्लिक होगा इट इज 210. कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या तो मिनिमम बेस वैल्यू कितनी 1. फिर मैंने आपको बताया एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन, जैसा कि डाइइन में हमने कंजुगेशन क्या था, एक्सटेंशन कंजुगेशन क्या थी, यस बाय 30 नैनोमीटर. इसमें भी बाय 30 नैनोमीटर है. एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो 5 नैनोमीटर है. ठीक. इसमें एक एडिशनल चीज आई थी, दैट वाज होमोडीन सिस्टम. क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड की है ना. तो मैंने क्या देखा, एक्सटेंशन हो गया डबल बॉन्ड का. लीव सोचो ये नहीं है, आई एम राइटिंग ओवर हियर राइट ऐसे. तो मैंने क्या देखा, डबल बॉन्ड का एक्सटेंशन, तो मिनिमम कंडीशन थी अल्फा और बीटा की राइट. हमारे को आगे की कंडीशन नहीं है, लेकिन हुआ क्या, हमारा डबल बॉन्ड कंजुगेटेड तरीके से एक्सटेंड हो गया, तो हमें 30 नैनोमीटर का एडिशन तो देना ही देना है. लेकिन व्हाट हैपेंड, ये डबल बॉन्ड जो था ये एक ही रिंग में ही रह गया, इधर नहीं आया है, ये इधर आया है. तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे होमोडाइन सिस्टम. एक अंदर जैसा आपने पहले पढ़ा होमो एनुलर
डाइइंग सिस्टम। ये इधर था, ये इधर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर कार्बोनाइल, हमारी मिनिमम कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनो, हमारी मिनिमम कंडीशन है, अवर मेन कंडीशन इज कार्बोनाइल के अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो गया, कैसे एक्सटेंड हुआ, कंजुगेशन से एक्सटेंड हुआ, मींस सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है। तो क्या हमने देखा, डबल बॉन्ड का एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन के लिए हम कितनी वैल्यू डालते हैं, 30 नैनोमीटर की। लेकिन जब ये एक्सटेंड हुआ तो ये रिंग के अंदर ही हो गया, मींस ये, इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सट्रीम ओवरलैप, बहुत अच्छे से ओवरलैपिंग हुई, इजीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए, जितने अच्छे से क्रोमोफोर एक्सटेंड हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए, उतने कम एनर्जी लेके वो एक्साइट हो गया, तो हमें उसमें 39 का इंक्रीमेंट देना है। लेकिन अगर ये ऐसे ही था जैसे ये है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तब आपको कोई इंक्रीमेंट डालने की जरूरत नहीं। अगर एक ही रिंग के अंदर आया तो हमें डाइइन सिस्टम को भी ऐड करना है, जैसा कि यहाँ दे रखा है 39 नैनोमीटर, है ना। अगर डबल बॉन्ड एक्सटेंड होता है, अगर एक्सटेंड नहीं होता है तब आपको ये डाइइन सिस्टम की बात आएगी नहीं, क्योंकि हमें एक ही डबल बॉन्ड है, दूसरा तो कार्बोनाइल के साथ है, सीओ है, डबल बॉन्ड तो एक ही है। डाइइन कब बनता है, जब दो डबल बॉन्ड्स हो। डाइइन कैसा बना, हेट्रोएनुलर, नो इंक्रीमेंट्स। डाइइन कैसा बना, होमोडाइन, क्यों, एक ही रिंग के अंदर आया, तब हमें 39 का इंक्रीमेंट देना है। उसके अलावा कुछ कुछ अगर ग्रुप्स जुड़े होंगे, अल्फा पे, बीटा पे, गामा पे, डेल्टा पे, ये इंक्रीमेंट्स, ये मैंने उस दिन आपको सारा ये टेबल आपको नोट्स तो दे ही दिए हैं, बट ये आपको समराइज रखने हैं अपने दिमाग में, इसका बना के रखना है कि अल्फा पे अल्काइल है तो 10 होगा, बीटा पे है तो 12 होगा, गामा पे तो है 18 होगा, डेल्टा होगा तो 18 होगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही दे रखा है। अल्काइल ग्रुप का 10, बीटा पे 12, गामा पे 18, डेल्टा पे 18। अगर सपोज डबल बॉन्ड और उसके आगे भी एक्सटेंड हो गया तो 18 हम कंटिन्यू करते जाएंगे, उसको डेल्टा डैश, डेल्टा डबल डैश, डेल्टा ट्रिपल डैश, डेल्टा 4 टाइम, जितना भी हम ले लेंगे एक्सटेंशन। फिर मोर देन 4 डबल बॉन्ड्स आते हैं तो वुडवर्ड रूल अप्लाई नहीं होता है, वो उसके लिए कोहान रॉथ रूल होता है, वो भी हम लास्ट में करेंगे। खैर, ऑक्सी है तो 35 नैनोमीटर अल्फा पे, बीटा पे 30, गामा पे 17, डेल्टा पे 31। हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो 35, बीटा पे है तो गामा पे है तो 30, डेल्टा पे है तो 50। क्लोरीन है तो 15, बीटा पे है तो 12, ये अल्फा पे है तो मैं बोल रही हूँ, है ना, ये तो दे ही रखा है, खैर एनीवे। गामा पे है तो 12, डेल्टा है तो 12, ब्रोमीन है 25, अल्फा पे, बीटा पे होगा तो 25, तो 25। मोस्ट कॉमन जो अटैचमेंट्स रहती हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, वो यही वाली रहती है और इनका इफेक्ट रहता है। इनके अलावा एक्सेप्शनल केसेस हैं उनको एंड यू कुड फाइंड ए चेंज, बट अदरवाइज यू हैव मैक्सिमम इंक्रीमेंट्स। अब आपको पता है। देन वी क्या देखा हमने, क्या है अल्फा, सबसे पहले आपको क्या जाना है, अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड किसके, मैंने बता भी दिया था, अल्फा का मतलब है कार्बोनाइल के नेक्स्ट कार्बन को हम अल्फा बोलते हैं, उसके नेक्स्ट को बीटा, उसके नेक्स्ट को गामा, उसके नेक्स्ट को डेल्टा, दो तरफ है। लेकिन हमने क्या देखना है, अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड, कहां, अल्फा पे, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी सीओ, उसके बगल में डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले तो देखा हमने भाई, ये जो सीओ डबल बॉन्ड है, सीओ के विसिनिटी में डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है, यस इट इज इन कंजुगेशन, तो मतलब हमें बेस वैल्यू ढूंढनी है। क्या ये ओपन चेन है, नो। क्या ये 6 हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड तो नहीं है, नो। अगर 6 मेंबर्ड है तो बेस वैल्यू कितनी है, 214। फिर अब हम देखते चले जाएंगे सब्स्टिट्यूशन। इधर की सब्स्टिट्यूशन नहीं देखनी, हमें कहां से सब्स्टिट्यूशन देखनी है, जहां से हमारा कंसर्न है, जहां से हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो हमने क्या देखना है, ये अल्फा, ठीक, ये अल्फा कार्बन, क्या इसमें कुछ जुड़ा है, when nothing is written that means H, so no, no substitution, H के लिए कोई इंक्रीमेंट नहीं है। फिर हम आ गए बीटा पे, कार्बन नंबर 2 पे, बीटा पे, तो इधर वाला मैंने भी उस दिन भी बताया था, यहाँ को नहीं देखना है बिकॉज ये तो अभी कॉन्जुगेशन में है, आगे भी डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो रहा है, सो दिस विल नॉट एंड अप, ये रिंग रेजिड्यू,
एक तो ये दिख रहा है, तो इसका मतलब अल्फा पे कितनी है, कोई, बीटा पे कितनी है, एक रिंग रेजिड्यू। और जो पीछे चार्ट बता रहा है वो क्या बता रहा है, एक होती है, तो 12 नेबर का एडिशन करना है हमने। ठीक हो गया। फिर आ गए हम डेल्टा पे। क्यों हमने देखा डेल्टा, क्यों देखने की जरूरत है, क्यों देखने की है, क्योंकि हमने देखा कि डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो गया। अरे हाँ, यहाँ तो कंजुगेशन है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये तो हमारे काम की बात है, ये तो क्रोमोफोर के एरिया को, टारगेटेड एरिया को बढ़ा रहा है, तो वे तो क्रोमिक शिफ्ट करेगा। तो हमने क्या देखना है, डबल बॉन्ड एक्सटेंड हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, एक्सटेंड हो गया, तो डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है, तो मतलब 30 नैनोमीटर का एडिशन डन। अब ये तो हो गया, तो क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन भी जुड़ी है, सो लेट अस सी नाउ दिस पोजीशन इज गामा पोजीशन, ठीक है, दिस पोजीशन इज डेल्टा पोजीशन, ठीक है, ये गामा पोजीशन, ये डेल्टा पोजीशन, इसको काउंट नहीं करना है, इसको काउंट करना, नो इट इज एच, हाँ कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। फिर हम डेल्टा पे आए, इधर तो कुछ नहीं है, लेकिन इधर तो है, सो एक रिंग रेजिड्यू यहाँ है, सो यू हैव अ डेल्टा सब्स्टिट्यूशन 18 नैनोमीटर। ठीक हो गया। तो अब यहाँ तक तो ठीक होगी कहानी, यहाँ तक तुम सारे भी ठीक करते हो, जो मैंने क्वेश्चंस भी लेके जाते हो, क्या इसमें एक्सोसाइक्लिक है, क्या इसमें एंडोसाइक्लिक है, ये क्या आपके दिमाग से निकल जाता है। हमारा को मिनिमम बेसिक को तो देखना ही देखना है, लेकिन चूंकि हमारा डबल बॉन्ड एक्सटेंड हुआ, क्या पता मैं ऐसे नंबरिंग कर तू 1 2 3 4, या मैं नंबरिंग 1 2 3 4, है ना। तो मुझे क्या देखना है, इस पूरे सिस्टम में क्या डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक कोई तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया कोई डबल बॉन्ड पार्ट ऑफ द रिंग सिस्टम हो गया, है ना, है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं वी आर गेटिंग 1, ये दिख रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ द रिंग सिस्टम। अगर बी को देखेंगे तो ए में एक एक्सोसाइक्लिक है, अगर इस रिंग को देखेंगे तो इसमें कोई एक्सोसाइक्लिक नहीं है, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ द रिंग सिस्टम नहीं है। Then it would be an whether exo whether endo you have to give only one increment। मैंने उस दिन भी समझाया था only one if you are क्योंकि हम दोनों सिस्टम को कोलैबोरेट करके हाँ बेटा, वो थोड़ा सा बीच में हुआ होगा, अब ठीक हो गया। अब आ रही है, अभी आ रही है आवाज, ओके ओके फाइन। बीच में कभी कभी नेटवर्क का इशू आ जाता है ना, कोई इशू नहीं है ना। और वन ऑफ द एग्जांपल वी हैव डन। अब ये शायद एग्जांपल और ये ले लिया हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड। तो क्या किया, देखो ध्यान से, ये है अल्फा, ये मैं आपको वाइंड अप करने के चक्कर में बताया था मैंने उस दिन आपको, ये अल्फा, ये है बीटा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पर दो हैं, दोनों कैसे हैं, बीटा पे हैं, तो मिनिमम एसाइक्लिक की वैल्यू कितनी आ गई 215, और एल्काइल रेजिड्यूज की कितनी है, बीटा पोजीशन, तो दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। हमने उस दिन दैट डे वी हैव डन। इसको जरा अब हम सॉल्व करते हैं, उस दिन हमने ये नहीं किया था, लेट अस डू दिस। अब हमने क्या देखना है, अगेन कंडीशन हमारी यही है, राइट। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। नाउ माय क्वेश्चन इज, मुझे इसमें चैट में लिख के दो या ऑन भी कर सकते हो, क्या इसमें एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन है या नहीं है, क्या इसमें एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन है या नहीं है, फटाफट बताओ। ये नहीं कि आंसर सॉल्व है, अपना दिमाग लगा के सोचो, क्या इसमें डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड है कि नहीं है। हमेशा पहला चीज क्या करनी होती है, हमें लॉन्गेस्ट चेन को चुनना होता है ना, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कंजुगेटेड, वेदर इट इज अ डाइन वेदर इट इज अ
कार्बोनाइल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल। तो हमें लॉन्गेस्ट चेन को चुनना है, लॉन्गेस्ट चेन को चुनना है। लॉन्गेस्ट चेन को चुनने के लिए क्या देखना है? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड along with your carbonyl. Vinyl having alpha beta, right? Yes, Vishal. Tell me whether we have an extension of conjugation here or not. और चैट में बता दो मुझे, we have or not, then I'll solve it. Is there extension of conjugation or not? Anybody? क्वेश्चन है, क्या इस मॉलिक्यूल में एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन है? डेल्टा गामा डबल बॉन्ड है या नहीं? एनीबडी? एनीबडी कैन आंसर? अभिषेक, अदिति, अजितव, यस, कम ऑन। डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है या नहीं है? नो, वेरी राइट। व्हाई नो? देखो, ये अल्फा बीटा, सो फर्स्ट पोजीशन को हम किसी भी कार्बोनाइल के दोनों तरफ की पोजीशन को हम अल्फा बोलते हैं। थॉरोली मैंने बता दिया आपको, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा। अगर मैं इससे पूछूं कितने अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है ना? और ये उसका बीटा हो गया। अभी आपको पीछे जो हमने हेटेरोसाइक्लिक रिंग वाला किया, उसमें एक्सटेंशन ऑफ डबल बॉन्ड था, यहाँ एक्सटेंशन, ये डबल बॉन्ड तो इसमें जरूर है, ये है, लेकिन बीच में क्या आ गया? एक सिंगल बॉन्ड, एक और सिंगल बॉन्ड, एक और सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। कंजुगेशन इज चेन इज ब्रोकन, जो भी हम कोरोना में बोलते हैं चेन इज ब्रोकन, ये वही चेन इज ब्रोकन ओवर हियर, है ना? चेन इज ब्रोकन, यू डोंट हैव एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन। तो सोचो आपका मॉलिक्यूल यही खत्म हो गया, यहाँ पर ये चीज जो सारी जुड़ी हुई है, ये जो सब है, इसको हम आर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? आर, मतलब एल्काइल ग्रुप। तो हम कह सकते हैं ये जो बीटा पोजीशन है ना, इस बीटा पोजीशन में क्या है? बीटा पोजीशन में क्या चीज है? बीटा पोजीशन में ये पूरी की पूरी सब्स्टिट्यूशन जुड़ी हुई है, ये पूरी सब्स्टिट्यूशन देखो, ये पूरी, इन सारे के सारे का ग्रुप को आर। आर का मतलब ये नहीं है कि खाली मिथाइल, इट कैन बी एनीथिंग, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी चीज उसके साथ जुड़ी, प्रोपीन, प्रोपिनाइल, प्रोपीनी आयल, आयल, आयल का मतलब एच एक निकला होना चाहिए, प्रोपीनियन, कुछ भी चीज जुड़ी हो सकती है उसके साथ। तो ये 1 2 3 4 एनीथिंग सब्स्टिट्यूशन है, ब्यूटेन की कोई सब्स्टिट्यूशन है, वो इसके साथ जुड़ा है, पूरे के पूरे ग्रुप को हम आर कहेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ेगा वो लंबी चेन है, वो छोटी चेन है, बड़ी चेन है, 10 कार्बन, एक कार्बन के, नो, इट विल नॉट कैरी, इट विल बी कंसिडर्ड एज एल्काइल ग्रुप। ठीक होगी बात? इट विल बी कंसिडर्ड एज एल्काइल ग्रुप। तो अब हम चलते हैं, हमें पता चल गया इसमें एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन नहीं है, ठीक है? एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन नहीं है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। तो हम पहले आ गए अल्फा पे। तो अल्फा पे क्या है भाई? कोई सब्स्टिट्यूशन है? हाँ जी, एक है, ये देखिए एल्काइल ग्रुप है, तो कितने का एडिशन? 10 का एडिशन। अब हम बीटा पे आएंगे, बीटा पे कोई है? यस, अभी मैंने समझाया, ये सारे का सारा जो है दिस ऑल इज आर पे 12 हो गया, सो यू गेट 37, इसकी वैल्यू आ जाए। अब इसी मॉलिक्यूल में मैं आपको इसी मॉलिक्यूल में चेंज कर रही हूं, इसमें मैं क्या ऐड करूं? और एक मिनट पहले मैं इसको अनडू के इसी में, कितनी सारी एग्जाम्पल होता है, ये सोचो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, दिस इज अल्फा, ये बीटा हो गया, ये गामा, मैं दो पोजीशंस लिख रही हूँ, अल्फा बीटा गामा। अब मुझे बताओ मैं इस मॉलिक्यूल में क्या ऐड करूं? सो लेट्स, अगर ये सॉल्व हो गया तो फिर हम आगे चलते हैं। यस, क्या क्या चीजें मैं ऐड कर सकती हूँ, और क्या मैंने हटाना है, क्या मैंने घटाना है, ये आप बता सकते मेरे को। अल्फे, चलो सबसे पहले मैं ही बता देती हूँ, पहले एक बार समझा देती हूँ, फिर मैं बोलूंगी। क्यों मेरे को पूछना है, उसी पे मैं
पहले देखो, यस, पहला स्टेप पहले ध्यान से देखना है, यू हैव टू स्टार्ट थिंक। आई एम टॉकिंग अबाउट alpha beta unsaturated carbonyl compound, aldehyde which can be a ketone, which can be an acid, can be an ester, है ना? It can be an open chain, it can be a 6-membered ring, it can be a 5-membered ring. ठीक, तो अब मैंने क्या देखा सबसे पहले, कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो ये क्या है, oh yes, it is a ring cup but it is a ketone. ओके, फिर देखना है रिंग कितने मेंबर्ड है, सो मैंने रिंग देखी, रिंग तो 6 मेंबर्ड है, सो वैल्यू कितनी होगी पेरेंट की, 15 होगी। बात क्लियर? यस, डन, इट्स ओके, इट्स फाइन। अब मैं आ गई अल्फा पे, क्या है, एक सब्स्टिट्यूट, तो मैंने डाल दिया 10 का इंक्रीमेंट। ओके, बहुत अच्छी बात। अब मैंने क्या देखना है, बी, मुझे बताओ क्या इसमें बीटा पे कोई सब्स्टिट्यूशन है या नहीं? से यस और नो, इज देयर एनी बीटा सब्स्टिट्यूशन और नॉट? बीटा पे कोई, नो, बीटा पे कोई सब्स्टिट्यूशन है, क्यों नहीं है? द रीजन इज ये हो गया, यस, ये एक्सटेंड हो गया। अब ये कैसा है, ये दिमाग लगाना है। अगर ये डबल बॉन्ड, एक मिनट देखो, अगर ये डबल बॉन्ड यहां होता, तब बीटा पे सब्स्टिट्यूशन होता, यस, तब बीटा पे सब्स्टिट्यूशन होता, ये वाला सब्स्टिट्यूशन होता। क्यों सब्स्टिट्यूशन होता? क्योंकि अब कंजुगेशन में डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन में दिया है डबल बॉन्ड, तो ये कंजुगेशन में है, राइट? ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, सो दैट मीन एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन। सो बीटा पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं। अब आ गए हम गामा पे, क्या गामा पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, ये H है, इसके ऊपर कोई। अब बताओ डेल्टा पे कोई सब्स्टिट्यूशन है? हाउ मेनी डेल्टा सब्स्टिट्यूशंस? जस्ट लेट मी नो, हाउ मेनी डेल्टा पे सब्स्टिट्यूशन? 1 or 2 or 3? This is डेल्टा, ये कार्बन इज डेल्टा, दिस वन इज डेल्टा। अब ध्यान से देख लो, क्या इसमें रिंग रेजिड्यू या अल्काइल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूशंस या नहीं? जस्ट लेट मी नो, डेल्टा पे सब्स्टिट्यूशंस हैं या नहीं? दिस इज डेल्टा, yes, but how many alkyl group substitution? One alkyl group and one is alkyl group and another, उसका नाम क्या होगा? What will be its name? इसको बोलेंगे alkyl group, इसको बोलेंगे, इधर वाले से भी देखना है, दोनों तरफ देखना है। So this one is ring residue, this one is alkyl. So you can write alkyl group और रिंग रेजिड्यू या अल्काइल रेजिड्यू, कॉमन नेम भी कर सकते हो अल्काइल रेजिड्यू। तो डेल्टा पे 2 हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 into 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 into 18, दैट मीन्स वी कैन राइट जस्ट 36। वी कैन राइट हियर 36। कैसे हो गया 36? बिकॉज डेल्टा पे 2 है। उसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन, तो कितना होगा? 30। अब बताओ मुझे, उसके अलावा भी कुछ होगा? 215 आ गया रिंग का, यस, होमोडाइन का 9, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विशाल, वेरी गुड। सो 39 का एडिशन भी देना है। क्यों देना है 39 का एडिशन? क्यों देना है? फिर से ध्यान से दो, आपको मैंने पीछे भी बताया, अगर डबल बॉन्ड एक्सटेंड हुआ कैसे, रिंग के अंदर ही, तो 39 का एडिशन आएगा। तो यहां क्या किया था मैंने? रिंग में ही एक्सटेंड कर दिया, है ना? अगर मैं इसको ऐसे लिखती, इफ आई वुड हैव रिटन लाइक दिस, तो तब हमें एक्सटेंशन नहीं देना था। ये कैसे एक्सटेंड हुआ? रिंग के अंदर ही हुआ, तो इसमें 39 का एडिशन भी करोगे, तो टोटल सम करो। अब
215 plus 10 plus 36 30 plus 39. So tell me what is the lambda max? Calculate करो. 215 plus 10 plus 36 plus 30 plus 39. Parent value 215. Alkyl group residues at alpha 10. At no, at gamma no, at delta 2. One is alkyl and then we can call it as alkyl residue. So 36. So since there is an extension of double bond, so it will be 30. You have an homodiene system. So it will be, yes, it will be having, okay, addition of whatever value it came. So it is there. So that is how we go about alpha beta unsaturated carbonyl. Suppose here we go. In this question, I am making changes over here only. I am writing here OH. Okay, now let me know what should be the base value for the compound. Now here instead of R, instead of methyl, it is OH. So compound has now become alpha beta unsaturated carbonyl. It is there, but what carbonyl? Is it an acid? Is it an aldehyde or is it an? It is acid. So base value I have shown you. पीछे मैंने आपको बताई थी base value. नीचे देखो ध्यान से, यहां दिखाई थी मैंने आपको बेस वैल्यू क्या थी, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड की या एस्टर की. सो वैल्यू इज 197. बाकी कोई चेंज नहीं होगा उसमें. क्या मैंने चेंज क्यों मैंने आपको बताया, हमने इस आर पे भी देखना है, ये भी ध्यान रखना है कि ये आर जो है हमारा क्या है. तो अगर इसको मैंने OH डाल दिया तो वैल्यू 197. बाकी आपकी सब्स्टिट्यूशन सारी चीजें सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना सब्स्टिट्यूशन पे. बट हाँ, इससे ये फर्क पड़ेगा ये एल्डिहाइड है, एसिड है कि एस्टर. सपोज इसको मैंने लिख दिया H, तो बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल्डिहाइड वाली वैल्यू 210 है ना. 210, आई थिंक 210 ही था मुझे जहां तक याद है. नहीं, एक मिनट एल्डिहाइड की एसाइक्लिक की 210. ओके, ऐसा भी हो सकता है. अब ऐसे कह दिया, इसको जरा ध्यान से देखना, फिर मुझे बस बेस वैल्यू, बाकी तो अब आप समझ गए हो. What should be the base value for this compound? Is it ketone or aldehyde? Yes, is it ketone or aldehyde? What it is? It is a ketone. जब भी रिंग में होगा definitely it will be a ketone. But is it 5-membered or is 6-membered? It has to be seen. If it is a 5-membered, value will always be 202. Yes, 202. है ना. ये 5-membered कीटोन है, 5-membered रिंग है, वैल्यू आनी चाहिए 5. 202. ये 5-membered रिंग है. 6-membered होता तो वैल्यू 250 क्या थी, वो पीछे आपने देखी 215. और अगर 5-membered है सो वैल्यू इज 202, राइट. और एल्डिहाइड है तो वैल्यू इज 210. एल्डिहाइड में आपके पास H आएगा, आपके पास कीटोन में दोनों तरफ को देखना है कि रिंग में है कि रिंग में नहीं. आई होप स्टूडेंट्स, for alpha beta unsaturated carbonyl, acid, esters, aldehydes, ketone, it is clear. But remember those increments कैसे करनी है, ठीक है. इसके बाद हम चलेंगे एरोमेटिक सिस्टम में, जो हमारा तीसरा वुडवर्ड का रूल है, दैट इज फॉर एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स. वो बाद में बताऊंगी, पहले ये समझना है किसकी मैं बात कर रही हूँ, है ना. ये रिंग बनी हुई है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, बेंजीन की बात नहीं कर रही हूँ. वो ध्यान रखना, मैंने जब हमने बैंड्स करे थे, हमने ट्रांजिशंस करी थी, तो तब भी मैंने आपको बताया था
कि बेंजीन में बैंड्स होते हैं। बेंजीन, टिपिकल बेंजीन में एरोमेटिक आपके पास E1 E2 और बेंजोनाइल बैंड है। अब मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट बेंजीन विच इज सब्स्टिट्यूटेड बाय, वुडवर्ड ने किसका रूल दिया था? बेंजीन विच इज सब्स्टिट्यूटेड बाय कार्बोनाइल, राइट? इट कैन बी ketone, it can be an aldehyde, it can be an ester. ये ध्यान से देखना है। इट कैन बी एन एल्डिहाइड, इट कैन बी कीटोन, इट कैन बी एन एस्टर, जैसा अभी आपने देखा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। अब आपको क्या देखना है? इट इज अ बेंजीन, एरोमेटिक है ना ये बेंजीन, इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन किसका है? CO, किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड का, और यहां से इट कैन बी R कैन बी H, R कैन बी एल्काइल, R कैन बी OH, R कैन बी OET, R कुछ भी हो सकता है, लेकिन CO के इस तरफ बेंजीन रिंग होगी। उनके लिए जो रूल दिया बेंजीन के लिए की मॉइटीज को एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए, तो आपको समझना है क्या बेस वैल्यूज होंगी, ये बाद में बताती हूँ। पहले एक और चीज देखो, जब तक बेंजीन भी ग्रुप नहीं है, इट इज ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। इफ आई से मिथाइल, ऑर्थो मिथाइल बेंजीन, कैन यू टेल मी ये मिथाइल ग्रुप कहां जाएगा? इफ आई से ऑर्थो मिथाइल बेंजीन, कैन यू आइडेंटिफाई ऑर्थो मिथाइल बेंजीन? बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप, एक सब्स्टिट्यूशन है। इफ आई राइट दैट मिथाइल हियर, और आई राइट हियर, or I write here, or I write here, it will be all equivalent positions. So we can't say it's an ortho मिथाइल बेंजीन, नहीं होगा। लेकिन अगर एक बेंजीन में ऑलरेडी कोई ग्रुप है, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी है, जैसे कि ये है, सपोज ये बेंजीन है, इसके ऊपर ये सब्स्टिट्यूशन है, इस OH को हम पोजीशंस डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल विसिनिटी में जो है दैट इज ऑर्थो पैरा, है ना? सब्स्टिट्यूशन के 1-4 पे होगा इट विल बी पैरा, 1-3 पे होगा इट इज, 2 पे होगा इट इज ऑर्थो। ठीक होगी बात? सो दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा, राइट? तो हमने क्या देखना है अभी, क्यों बता रही हूं मैं, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन में हमें देखना है। सिंपल बेंजीन है, मैंने बोला टॉल्वीन, बेंजीन के ऊपर मिथाइल डाला, सो इट कैन नॉट बी ऑर्थो मेटा पैरा। लेकिन टॉल्वीन के साथ मैंने दूसरे ग्रुप को भी ऐड कर दिया, क्लोरीन। सो क्लोरीन विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल ऑर्थो 2 पोजीशन पे, 3 पे भी गया। नंबरिंग में कैसे करूंगी? विद रिस्पेक्ट टू दैट पोजीशन, जिसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। क्यों ऑर्थो पे जाता है, क्यों मेटा पे? आपने ऑलरेडी अपने ग्रेजुएशन की क्लास, है ना? सो ऑर्थो मेटा पैरा। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे बेंजीन वाली, वुडवर्ड का रूल स्टडी करेंगे, तो अब हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ कंजुगेशन, एक्सोसाइक्लिक, एंडोसाइक्लिक, वो नहीं है। हमने बेंजीन को ही देखना है, बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है। आप ऑलरेडी जानते हो की तरह एक्ट करता है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये अपने डबल बॉन्ड्स हैं, इनके साथ शेयर करता है, तो विद द रिजल्ट बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है। तो क्या ऑर्थो पे होने से ज्यादा होगा, पैरा पे होने से ज्यादा होगा, मेटा पे होने से ज्यादा होगा? जैसा जैसा कंजुगेशन एनहेंस होगा, जितना लंबा कंजुगेटेड साइट रहेगा, उतना ज्यादा हमारे पास पैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। तो ये जानने के लिए कि बेस वैल्यू कितनी है, एल्डिहाइड की कितनी होगी, कीटोन की कितनी होगी, और हमारे पास अगर कोई ग्रुप जुड़ गया उस बेंजीन पे, नॉर्मल वुडवर्ड ने कहा मिनिमम बेस वैल्यू एक पर एक CO ग्रुप जुड़ा है, R है तो बेस वैल्यू इतनी है, H है तो बेस वैल्यू कुछ और है, एस्टर है तो बेस वैल्यू कुछ और है। लेकिन उस बेंजीन में भी अगर ऑप्शन है तो देयर आर द एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस, जो हम अकॉर्डिंगली देखेंगे। तो अब आप समझ सकते हो मैं क्या बताना चाह रही हूँ। सो बेस वैल्यू फॉर एन कार्बोनाइल, वुडवर्ड रूल फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स विद कार्बोनाइल, ये ध्यान रखना है, विद कार्बोनाइल। मैं जनरल बेंजीन वाली बात नहीं कर रही हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द बेंजीन मॉलिक्यूल, राइट? सो इफ इट इज, जो R हमारे पास एरोमेटिक है, बेंजीन, COR लाइक ए कीटोन, सो बेस वैल्यू इज 256,
246. But if its value is 250, but if it is an acid and even ester also, base value is 230. ध्यान से, राइट? क्या हो गया? बेस वैल्यू, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है बेंजीन के ऊपर, CHO है तो 250, बेंजीन के ऊपर कीटोन ग्रुप जुड़ा है तो 246, बेंजीन के ऊपर एक एसिड ग्रुप जुड़ा है तो 230, बेंजीन के ऊपर COR है तो वैल्यू 230. दिस इज मिनिमम वैल्यू. अब कुछ ना कुछ अगर रिंग कोई चीज जुड़ी है उसके ऊपर तो कुछ ना कोई वैल्यू होगी. तो क्या है? अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ा है ऑर्थो पे या पैरा पे तो वैल्यूज डिफरेंट है. एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, रिंग रेसिड्यू भी हो सकता है, वो भी बताऊंगी कैसे रिंग रेसिड्यू हो सकता है. बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर साथ में तुमने साइक्लोहेक्सेन जोड़ दिया, वो भी तो एक एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है, उसको हम रिंग रेसिड्यू बोलेंगे. ठीक है? अगर वो ऑर्थो पे है तो 3 और अगर वो पैरा पे है तो 10 एल्काइल. ये बाकियों की वैल्यू क्या है? मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा. यहाँ पे ठीक से आया नहीं है इसलिए बता रही हूँ. दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा. ठीक? अगर OH ऑर्थो पे है तो 7, मेटा पे है तो 7, पैरा पे तो है 25. अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन मिथॉक्सी है, OCH3 या ए एल्काइल भी कर सकते हैं इसको, जरूरी नहीं है मिथाइल लिखो, R भी लिख सकते हैं. So value is 7 and 25. और अगर O नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन है, it is 7, 28. क्लोरीन है ऑर्थो पे, मेटा पे है कुछ नहीं लेकिन पैरा पे है तो ब्रोमीन ऑर्थो पे है तो 2, मेटा 2, पैरा पे है तो 15. NH2 ग्रुप अगर जुड़ा है तो 30, 13 एंड 58. इसके अलावा भी NHAR भी NHR N ट्वाइस R भी होता है. कभी कभी S एल्काइल ग्रुप्स भी अटैच्ड होते हैं, बट रेयर केसेस रहते हैं ऐसी सब्स्टिट्यूशंस के, बट इट कैन बी देयर. देन आल्सो देयर इज अ बेथोक्रोमिक शिफ्ट. तो लेट जो हमें और क्लियर कर देगी. सो ये हमारे पास है बेंजीन. ठीक हो गई बात? ये हमारे पास है बेंजीन. हमने क्या देखना है? एल्डिहाइड है कि कीटोन है? नहीं, COCH3. इसका मतलब बेंजीन के ऊपर किससे सब्स्टिट्यूशन है? CO ग्रुप से है, लेकिन CO के साथ क्या है? CH3. सो दैट मीन्स इट इज अ कीटोन. बेंजीन के ऊपर कीटोन रिंग है, कीटोन का सब्स्टिट्यूशन है, COCH3 है ना. इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन. एसिटोफिनोन, एसीटोन क्या होता है? CH3COCH3, लेकिन CH3 की जगह बेंजीन है तो फिनाइल ग्रुप, तो हम बोलते हैं एसिटोफिनोन. ठीक होगी बात? तो बेस वैल्यू क्या होगी? 246 बिकॉज इट्स एन एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड which is a ketone. अब हमने देखना है इसके बाद ध्यान से, क्या ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन है. और सबसे बड़ी बात ये है, ऑर्थो पोजीशंस कितनी है? ये देखो, इधर से भी ऑर्थो है. मेटा पोजीशन कितनी है? इधर से भी मेटा पोजीशन. सो वन ऑर्थो अनदर ऑर्थो, वन मेटा अनदर मेटा. ये नहीं देखना है आपने, इसमें 3 ही पोजीशन है, ऑर्थो मेटा पैरा. तो ऑर्थो दोनों तरफ है, मेटा दोनों तरफ है, दोनों तरफ देखना है कि कहीं दो तो नहीं. तो आपको दोनों तरफ की पोजीशंस नोट करनी है. तो यहाँ पर ऑर्थो पे है नहीं, नो सब्स्टिट्यूशन, नो सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी नहीं है. लेकिन अब मैंने कहा पहुंच गई? मेटा पे. तो पीछे अगर आप वैल्यू देखोगे, मेटा हाइड्रोक्सी क्या था? 7, पैरा है 25. चलते हैं आगे. ये क्या है? ऑर्थो पे कुछ नहीं, मेटा पे 7, पैरा पे 25, बस. उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है. तो आप देखोगे वैल्यू कहाँ आएगी? 278. सो कोई और एग्जाम्पल नहीं है तो मैं इसी में एग्जाम्पल बनाऊंगी. अच्छा चलो एक और है. हाँ, अब जरा इसको देखते हैं हम. अब हमारे को देखना है, जो मैंने वो रिंग रेसिड्यू वाली बात बताई थी. सबसे पहले क्या है? बेंजीन. ठीक है,
बेंजीन, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये है हमारा बेंजीन। ओके, हमने क्या देखना है? सब्स्टिट्यूशन सीओ ग्रुप। यस, इट सीओ ग्रुप है ना, ये सीओ। ये देखो, ये नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ये रिंग है, बट ये सीओ ग्रुप है। बेंजीन की डायरेक्टली ऊपर कार्बोनाइल होना चाहिए। यस, सो इट इज अ सीओ ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। लेकिन क्या ये एल्डिहाइड है? सपोज ये रिंग नहीं होती, ये सब नहीं होता, मैं इसको काट रही हूँ, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, तो क्या होता है? यहाँ पर H होता, तो ये क्या बन जाता? एल्डिहाइड। तब एरोमेटिक एल्डिहाइड हो जाता? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। ये क्या है? ये क्या है? एक रिंग से सब्स्टिट्यूटेड है, ये पूरी रिंग से सब्स्टिट्यूटेड है, जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसका मतलब है ये क्या है? बेंजीन के ऊपर COR, अगेन इट इज अ कीटोन। तो 246, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर, 246. अब कैन यू टेल मी हाउ मेनी ऑर्थो सब्स्टिट्यूशंस? हरी अप, यू नो वी आर रशिंग, 3 मिनट टाइम बचा है, वी आर हैव टू हरी इट अप। कितनी ऑर्थो सब्स्टिट्यूशंस है? फटाफट चैट बॉक्स में बोलो, कितनी ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं है? आंसर उधर मत देखो, उसमें नहीं समझ आएगी तुम्हें, मेरे से पूछ के बताओ, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है? हाउ मेनी ऑर्थो सब्स्टिट्यूशंस? 1 और 2? सबसे पहले क्या कंडीशन रखनी है आपने? फटाफट ऑर्थो बना देनी है। ये ऑर्थो, ये भी ऑर्थो है ना, ये भी ऑर्थो, फिर ये मेटा, ये भी मेटा, और एक पैरा। अब हमने दोनों ऑर्थो देखनी है, दोनों तरफ देखनी है, तो इस तरफ तो नहीं दिख रही मुझे, लेकिन इस तरफ तो ये रिंग जुड़ी है ना, जो मैं आपको बोल रही थी, इट कैन बी अल्काइल ग्रुप और रिंग रेजिड्यू। तो यस, इसका मतलब ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन है। कैसी? रिंग रेजिड्यू की, और उसकी इंक्रीमेंट 3 ने। इज इट क्लियर? हमने दोनों तरफ देखना है, यहां से तो नहीं है, लेकिन यहां से है। फिर मेटा, दोनों तरफ देख रहे हैं, नहीं है। पैरा, पैरा इज देयर, OCH3 पैरा पोजीशन पे। इसके मुकाबले देखना है आपको, राइट? तो इसके मुकाबले में हम देख रहे हैं, तो पैरा पे OCH3 है, राइट? जब OCH3 है तो उसकी इंक्रीमेंट हम 7। किसी को ये क्लियर नहीं हुआ हो तो बताओ, बताओ, जल्दी पूछो। ये ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये मेटा, ये भी मेटा, ये पैरा। अब जब मैं ऑर्थो देखने गई तो मैंने देखा इस ऑर्थो पे यहां से ये पूरी की पूरी रिंग जुड़ी हुई है ना, ये पूरा अल्काइल ग्रुप को काउंट कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे यस, मेटापेक्स रिंग रेजिड्यू है। तो कितनी इंक्रीमेंट डाल दी मैंने? 3 की रिंग मैंने डाल दी। फिर मैंने देखा मेटा, नो, मेटा पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। पैरा पे OCH3, राइट? तो पैरा पे भी हमारे पास एक और सब्स्टिट्यूशन आ गई, और वैल्यू हमारे पास 256 आ गई। सो लाइक वुडवर्ड ने इसके रूल्स दिए, बोला कि हम ऐसे ऐसे कर सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स, राइट? और इसके बाद हम करेंगे फिजर कॉन रूल, जो फॉर एक्सटेंशन ऑर्डर, वो कल करते हैं, लेकिन इसी पे स्टॉप करते हैं। एरोमेटिक सिस्टम्स और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड डाइईन। एनीबडी, एनी प्रॉब्लम, जस्ट लेट मी नो, एनी प्रॉब्लम, तो वी विल अगेन सॉल्व इट। अगर कोई कोई न्यूमेरिकल्स है, जैसे मैंने आपको 5 दिए थे, ऐसे ही मैं अगेन आई विल बी गिविंग, और फिर फ्राइडे को हम डिस्कस, थोरो डिस्कशन, कल हम कौन फेजर करेंगे, वी विल हैव एनफ टाइम, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, देन आई बी स्टार्टिंग विद द न्यू मॉलिक्यूल, न्यू टॉपिक ऑफ इट। एनीबडी, एनी प्रॉब्लम? हर्ष, अभिषेक, एनीबडी, you can ask me, and then I stop the recording. Fine, is it clear to everybody? Is it clear? Okay, fine. So I am ending it up, stopping it.
Thank you very much. So we'll be meeting tomorrow again at Monday. Monday we've got the class at again. Bye. Again, we are left only one topic now.